جی دیکھیں، ہر چیز کو جو ہے نا وہ نیگیٹو نہیں لینا چاہیے، پازیٹیو بھی لینا چاہیے. میں سمجھتا ہوں بہت زبردست انیشیٹو لیا اور ہمارے پی ایم صاحبہ نے. اور 29% تک پاکستانی اب ایڈیشنل یعنی 70 ملین کے قریب یا 7 کروڑ کے قریب اب پاورٹی لائن عبور کر چکے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ تقریباً 123 سے زائد بین الاقوامی کمپنیاں پاکستان سے نقل مکانی کر چکی ہیں. ایک تو ہمارے ہاں غربت کی جو شرح ہے، جو پاورٹی ہے، وہ بڑھ رہی ہے، لیکن ہماری اسی حکومت کی جو گڈ گورننس ہے. اس وقت ہمارے جو ہے وہ ویزے لگنا اور اس کے لیے کتنے آگے کمپلیکیشن ہے، ہمارے پاسپورٹ کی ویلیو جو ہے وہ کتنی ڈاؤن ہو چکی ہوئی ہے. اس کے اوپر ہم خود جو ہے وہ اپنے اوپر ایک اور ظلم کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے یہ ایف آئی آر کلچرز کو جو ہے نا بہت زیادہ پروموٹ کر دی ہے. لگ رہا ہے کہ ہم ایک پھٹا ہوا ڈھنڈورا بار بار پیٹتے جا رہے ہیں اور وہی بات دوبارہ ریپیٹ کرتے جا رہے ہیں، لیکن نئے فگرز اور نئی حقیقت کے ساتھ. اس بار پھر پاکستان کا جو اکنامک میلٹ ڈاؤن ہے اس کے اندر کوئی رکاوٹ ہمیں نظر نہیں آ رہی، لیکن چیزیں بد سے بدتر ہونے کے باوجود جو کانفیڈنس ہے یا اوور کانفیڈنس ہے پاکستان کے اکنامک مس مینیجرز کا، اس کے اندر بھی اضافہ ہی دکھتا نظر آ رہا ہے. کہ مشرف صاحب کے اگر دور سے ہم بات شروع کریں کہ ان کے دور کے اندر ہم نے دیکھا کہ قرضہ بڑھنے کی جگہ کم ہوا تھا اور ہمارا جو ڈیٹ ٹو جی ڈی پی ریشو تھا وہ 60% بلکہ اس سے بھی کم ہو گیا تھا. اب دوبارہ چھلانگ لگا کے وہ 70% اور اس سے اوپر آ گیا ہے. اور اس کے بعد سے 2008 کے بعد سے ہر حکومت نے قرض کے حجم میں، کہتے ہیں نا، جو ہم نے 50 سال میں اس سے پہلے جمع نہیں کیا ہوگا، انہوں نے ان برسوں میں کیا. ہر 2 مہینے کے بعد ان کا مشن آتا ہے، ہمیں نئے ٹاسک دیتا ہے، ناک سے لکیریں کھچواتا ہے اور انتہا کی سخت جسے کہتے ہیں کہ پالیسیز ہمیں دے کر وہ جاتے ہیں کہ یہ پورا کر سکتے ہو تو کرو ورنہ جاؤ. اس کے بعد ہمارے ملک کے حکمران اپنے لیے 11 ارب روپے 40 سے 50 ملین امریکی ڈالرز کے جہاز خریدتے ہیں اور پھر جھوٹ بولتے ہیں، اور جھوٹ بھی بہت ڈٹائی کے ساتھ بولتے ہیں. ایسا جھوٹ بولتے ہیں کہ منہ پہ بولتے ہیں کہ یار آپ تو باقی بالکل ہی فارغ ہیں، چے ہیں، کسی کو کچھ پتا نہیں ہے، ہم بڑے عقل مند ہیں. جس کے اندر ابھی حال ہی کے اندر مٹسوبشی نے اپنے اینگرو کے اندر شیئرز بیچنے کی بات کی. اس کے ساتھ ساتھ پاکستان سٹینڈرڈ چارٹرڈ بینک سے شارٹ ٹرم کمرشل لون تقریباً $600 ملین لینے کی کوشش کر رہا ہے ایک طرف، دوسری جانب فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ شاید منفی سطح چھو گئی ہے. سب سے اہم بات یہ کہ 2001 سے 2005 5 سال ہم نے ایک بینچ مارک اسٹیبلش کیا. قطع نظر اس کے کہ میرا تعلق کسی پارٹی سے نہیں، نہ کسی گروپ سے ہے. مجھے بلوایا گیا باہر سے کہ جس کو آپ کو مینیج کرنا ہے. اس 5 سال میں کیا ہوا؟ پریکٹیکل بات کر رہا ہوں میں آپ سے، میں کتابی بات نہیں کر رہا آپ سے کہ یار دیکھیے 5 سال میں یہ ہوا کہ میں حلفاً کہہ رہا ہوں کہ ہمارے پاس ایک ہفتے کا امپورٹ بل نہیں تھا. ہارڈلی ریزرو ہمارے تھے $800 ملین کے، وہ بھی جب مشرف صاحب اس میں اقتدار میں آپ سے بات کر رہا ہوں میں آپ سے بات کر رہا ہوں اپنی 9 جنوری 2001 سے بات کر رہا ہوں، 1 کی بات کر رہا ہوں. تو مجھے پی ایس او کے ایم ڈی فون کرتے کہ سر ہمیں پیمنٹ آ رہی ہے، ہمیں کیا کرنا ہے. جاپنیز بینک کا ہیڈ بھی فون کرتا کہ سر میری کیلشیم ایشو ہمیں کیا کرنا ہے. اس طرح کے حالات تھے. تو سر وہ $800 ملین سے بڑھ کے ہو گئے وہ $14 بلین. الزام لگایا 9/11 ہو گیا. میں کہتا ہوں پازیٹیو بات ہو سکتی ہے، لیکن پراپر پروڈنٹ ایکسچینج مینجمنٹ اینڈ ڈیٹ آفس کو مینیج کرنا ہے. اب میں پھر ڈیٹ پہ فوکس کر رہا ہوں. پہلے پاکستان کی 29% یعنی 25% جو پاپولیشن ہے غربت کے بے رحم شکنجے میں جکڑی ہوئی ہے، پاورٹی کی بدترین سطح پر اس وقت موجود ہے. پاکستان میں غربت کے اعداد و شمار کے مطابق 2018-19 میں جو غربت کی شرح تھی، جو پاورٹی تھی، وہ تقریباً 21.9% تھی، لیکن گزشتہ 6 سالوں میں اس میں 7% کا بڑا اضافہ ریکارڈ کیا گیا ہے. یعنی ان لوگوں میں 7% مزید لوگ شامل ہو کر غربت کی لکیر سے نیچے کی زندگی گزار رہے ہیں. اور غربت کی لکیر کیا ہے؟ $2 سے کم یا $2 کمانے والے غریب. $2 کیا ہے پاکستان میں؟ 500 روپے.
एक मजदूर की कम अज कम दिहाड़ भी आज 1000, 1200 या 1500 रुपए बनती है। अब आप सोचें कि जो $2 कमाता हो या $2 से कम कमाता हो क्या करेगा। आप मार्केट चले जाएं, क्योंकि मैं हमेशा ये बात करता हूं कि हमारी हुकूमतें ये दावे करती हैं बड़े बड़े, वो औरंगजेब अहमद एक पैराशूटर है, फाइनेंस मिनिस्टर, वो ये दावा करते कि जी हालात तो बड़े मजेदार हैं। बिल्कुल उनके लिए बेहतरीन हालात है भाई। वो कभी डेवस की कॉन्फ्रेंस में जाकर बैठे होते हैं, कभी सऊदिया में बैठे होते हैं, कभी अमेरिका बैठे होते हैं, कभी लंदन बैठे होते हैं। भाई वीआईपी उनका ट्रैवलिंग है, बड़ी बड़ी लग्जरियस होटल्स में उनका स्टे है, बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, सैर सपाटे हैं, तो उनके लिए तो वाकई बहुत बेहतरीन हालात है, इसमें मुझे कोई डाउट नहीं है, वो बिल्कुल दुरुस्त कहते हैं। लेकिन आपको ये भी बताना है कि वर्ल्ड बैंक हमारे यहाँ जो पॉवर्टी की जो सतह है या जो पॉवर्टी का लाइन है वो कहां पर है, वहां पर कितने लोग उन्होंने बताए हैं, वो ऑलमोस्ट 45 to 50% लोग, यानी ऑलमोस्ट आधी आबादी गुर्बत की लकीर से नीचे जिंदगी गुजार रही है। लेकिन सब कुछ बेहतरीन है। मीडिया पे एवन जी आज तो बसंत मनाया गया, देखो जी इतने $बिलियन का बिजनेस हुआ। मुझे नहीं पता कि इतने $बिलियन का अगर पतंगों से बिजनेस होता है तो भाई ये तो फिर आप जनवरी से शुरू करें, मार्च तक मौसम बेहतर रहता है, तो ये मुसलसल मनाते रहे, इसका हर वीकेंड पे 2-2 दिन दे के हमारे ये कर्जे उतर जाएं। और इनके पाले हुए जर्नलिस्ट ये दावे करते हैं कि अगर 1-2 साल और बसंत मनाई गई तो पाकिस्तान का कर्जा उतर जाएगा। अजी कर्जा उतरने वाली जो ड्रामेबाजी है ना, ये हमने उनसे सुनी थी, मुराद सईद हुआ करते थे कि $200 अरब स्विस बैंकों में पड़े हैं, वो आएगा $100 अरब हम मुंह पे मारेंगे आईएमएफ और बाकी लोगों के, और $100 अरब से हम ये मुल्क चलाएंगे। ये उस वक्त से कहानी, उससे पहले भी है। फिर आ जाए जरा इस स्विस डॉलर्स के बाद, अच्छा फिर कहा कि जी कोई गैस निकल रही है समंदर में, तेल निकल रहा है, और उसके बाद तो हमारे बस अच्छे दिन आने वाले। हम भी अभी भी हया के इंतजार में थे कि चलो हम भी ऐसे होंगे, मतलब जिस तरह सऊदी अरेबिया के लोग, कतर, यूएई के लोग मतलब बड़े टाट बाट में रहते हैं। हमने कहा शायद हमारे भी दिन फिर जाएंगे, वो भी नहीं हुआ। पाकिस्तान से मल्टीनेशनल कंपनीज जो हैं वो अपना बिजनेस बंद करती जा रही हैं, और अभी भी तकरीबन 125 कंपनीज के बारे में कहा जा रहा है कि उन्होंने अपना बिजनेस पाकिस्तान से ख़त्म कर दिया है, और या अपने शेयर्स बेच दिए, जो भी किया, बहरहाल वो पाकिस्तान में काम नहीं करना चाह रहे। क्या वजह लग रही है आपको इसकी? उनको रिटर्न नहीं मिल रहा, या सिक्योरिटी पर्पस की वजह से, या कोई और तरह का उनको कोई खतरा है? क्या वजह है कि, क्योंकि इससे तो पाकिस्तान को बहुत नुकसान होगा अगर मल्टीनेशनल कंपनीज इस तरीके से बंद होना शुरू हो गई। जी, आरज़ू इसकी सबसे बड़ी वजह जो तवातर के साथ, पहले तो बहुत सारी वजूहात हैं, लेकिन हम थोड़ा-सा अगर इसको कैटेगराइज़ करें और वन बाय वन चले। देखिए, एक तो ऑब्वियसली एक जो गिला हमेशा से रहा है मल्टीनेशनल कंपनीज़ को या इन्वेस्टर्स को पाकिस्तान में, वो इन्वेस्टर में सिर्फ ये नहीं कहूँगी कि कोई इंटरनेशनल या फॉरेन इन्वेस्टर, वो पाकिस्तानी इन्वेस्टर्स को भी ये प्रॉब्लम रही है कि हमारी पॉलिसीज़ जो हैं वो कंसिस्टेंट नहीं होती, इनकंसिस्टेंसी होती है। अच्छा, फिर आप देखें कि हमारे यहाँ जो पॉलिटिकल सेटअप है उसका तसलसल भी बिल्कुल, आप देखती हैं कि थोड़ी अरसे के बाद, 2-3 साल के बाद मतलब हुकूमत आती है, उसको ज़्यादा से ज़्यादा 6 महीने 1 साल काम करने देते हैं। वो बड़ी अच्छी फेवरेबल टर्म्स पर काम हो रहा होता है, वो जैसे बकौल शख्स से 1 पेज पर होती है हुकूमतें और हमारी मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट, और फिर उसके बाद हम देखते हैं कि एक तोड़-फोड़ का सिलसिला शुरू होता है। और एक बहुत ही मशहूर जो स्ट्रैटेजी है जो आजकल अपनाई जाती है वो प्रोटेस्ट की स्ट्रैटेजी है। अगर आप इमरान खान साहब की हुकूमत को भी देखें, जब वो आई तो बिल्कुल वो 1 पेज भी था और बहुत कुछ था, सब कुछ एक मोहब्बत वाला एक सिलसिला था, एक अफ़साना था। लेकिन उसके बावजूद हमने देखा कि 1 साल ही नहीं गुज़रा था तो पीडीएम बन गई, ठीक है ना? उसके बाद फिर आपने देखा कि किस तरह से उसी ने आगे चलकर जो है इस हुकूमत को, इमरान खान साहब की हुकूमत को गिराया। उसके अब सारी प्रॉब्लम ये है कि पाकिस्तान में जो है वो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आती है। जब पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आती है तो उससे फिर मार्केट जो है वो वोलेटाइल हो जाती है। मार्केट वैसे ही वोलेटाइल होती है, मार्केट का वैसे कुछ पता नहीं होता, लेकिन मार्केट जो है वो सेंटिमेंट्स पे चलती है। पाकिस्तान इस समय गंभीर आर्थिक संकट से गुजर रहा है और इसका सबसे बड़ा असर आम जनता पर पड़ रहा है। गरीबी, महंगाई और बेरोजगारी लगातार बढ़ रही है।
वर्ल्ड बैंक की हालिया रिपोर्ट के अनुसार पाकिस्तान की बड़ी आबादी गरीबी रेखा के करीब या उसके नीचे जीवन जी रही है। आर्थिक स्थिरता, महंगाई और कर्ज के बोझ ने हालात को खराब कर दिए हैं। करोड़ों लोग 2 वक्त की रोटी के लिए संघर्ष कर रहे हैं। मध्यम वर्ग भी धीरे धीरे गरीब वर्ग में जा रहा है। ग्रामीण इलाकों में तो बस से बदतर स्थिति हो गई है। पाकिस्तान में खाद्य पदार्थों की कीमतें कई बार 30 से 40% तक बढ़ चुकी हैं। आटा, दाल, चावल, तेल के दाम आम आदमी की पहुंच से बाहर हो रहे हैं। पेट्रोल और बिजली की कीमतों पर लगातार बढ़ोतरी हो रही है। पाकिस्तान में इतनी गरीबी आ चुकी है कि वहाँ की जो फैक्ट्रियाँ, जो बाहर के लोग वहाँ पर इन्वेस्ट किए थे, वो फैक्ट्रियाँ भी बंद हो रही हैं। अब वहीं पाकिस्तानी मीडिया अब इससे सवाल कर रही है अपने गवर्नमेंट से कि आखिर ये किसकी नाकामयाबी है? क्यों क्यों हमारे बाहर की कंपनियां जो हमारे देश आई थी इन्वेस्ट करने, हमारे देश में रोजगार कर रही थी, क्यों वो बंद करके अब वापस जा रही हैं? क्या इसमें कहीं ना कहीं सरकार की नाकामी सभी हुई है, या फिर जैसे छोटे कारोबारियों पर कर्ज का दबाव बढ़ रहा है, युवाओं के लिए रोजगार के अवसर कम हो रहे हैं? इन सब चीज़ों पर सरकार को ध्यान देना चाहिए कि आखिर क्यों ये सब चीज़ें हो रही हैं। क्योंकि अगर सरकार ध्यान नहीं देगी तो हमारा देश तो पक्का है कि गरीबी रेखा में आ ही जाएगा। 2022 में जब पाकिस्तान में लाखों लोग बेघर हो गए थे, उसके बाद अभी तक कई परिवार जो हैं जो उससे अभी तक उभर भी नहीं पाए हैं। इस पर भी पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने थोड़ा भी ध्यान नहीं दिया और ना ही उन लोगों की थोड़ी सी भी मदद की। उसके बाद बात रही IMF से कर्ज लेने की, और IMF से कर्ज पाकिस्तान इतना ले चुका है कि अब जो है मान के चलो कि पाकिस्तान अमेरिका का गुलाम हो चुका है। तो उसी पर अमेरिका वाले भी अपने आप दांव पेच खेलते हैं, और जब ये सब चीज़ें हमारी गवर्नमेंट करती है तो इन सब चीज़ों का सीधा असर हमारे आम जनता के इनकम पर पड़ता है। कई बार पाकिस्तान के कई शहरों में लोग महंगाई के खिलाफ प्रदर्शन भी कर चुके हैं, लेकिन फिर भी सरकार ने इस पर कोई भी ध्यान नहीं दिया। पाकिस्तान में एक और गंभीर सामाजिक और आर्थिक समस्या बन चुकी है। जब तक आर्थिक सुधार, रोजगार सृजन और महंगाई पर नियंत्रण नहीं होता, तब तक आम जनता की मुश्किलें कम होती नहीं दिखेंगी। अब यहीं पर देखते हैं कि पाकिस्तानी गवर्नमेंट जो है क्या करती है, क्या अपने जनता के लिए कुछ करेगी, या फिर से IMF से लोन लेगी और फिर उसके बाद जो है उनके मंत्री लोग बाहर जाके घूमेंगे, और पाकिस्तान में क्या हो रहा है, उनकी जनता के साथ क्या हो रहा है, पाकिस्तानी गवर्नमेंट को इससे कुछ लेना देना नहीं होगा। बाकी आपकी क्या राय है? आप भी अपनी राय बताएं, कमेंट बॉक्स जरूर लिखें। जय हिंद, जय भारत।